Good morning, children. So, once again, we are meeting in lecture number 6 of chapter 3. That is, movement towards the new world. Now, let us say something about previous lectures. As we have discussed in previous 5 lectures, the whole system which existed after World War I and before World War II, that is called 20 years. Historians says अथवा quotes this period as a period of uneasy peace. Why it was uneasy peace? Because number of factors took place, and each and every factor I have explained you in detail. Right? Each and every factor. Now what happened? As far as war was concerned, war took place in such a manner that almost whole of Europe in the initial stage turned into a battlefront. And as a result, what happened? Everything was destructed. Everything. If you get a chance to see these encyclopedias and number of archive files, you search all these things, children. You try to search the material connected to World War II. You will see. You will not find a single place where a person can say this was a city. Almost all the cities of Europe has faced the heat of war. Equal amount of expenses. And as you know, children, government figures are always false. Figures released by the different governments of the world, they have produced that figures amounting to 3 crores. 3 crore people died, which is absolutely false. More than 3 crore died. आप इतना सोचो बच्चों, अगर सरकार 3 करोड़ का आंकड़ा बताती है तो रियल में वो आंकड़ा कितना होगा? है समझ में? रियल में वो आंकड़ा कितना बड़ा होगा? तब सरकार को जाके 3 करोड़ बताना पड़ा। ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी, लाइव्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब कुछ तबाह हो गया था। इनिशियल स्टेज में यूरोप में था, लेकिन जो 2 गलतियां हुई थी, एक गलती जापान ने की थी। जापान ने अमेरिका जो न्यूट्रल कंट्री था और उसका जो नेवी का बेस था पैसिफिक ओशन में, हवाई आइलैंड जो है एरिया, उसके पास पर्ल हार्बर है, वो इलाका का नाम है। एक बहुत अच्छी हॉलीवुड की मूवी भी थी, पर्ल हार्बर, शायद आप बच्चों लोगों ने देखी भी होगी। जापान ने उधर हमला किया अमेरिकन नेवी पे, एंड इन द सिंगल अटैक अमेरिका सफर्ड अ वेरी वेरी gigantic loss. More than 4,500 people, civilian soldiers were killed. The American Navy stationed at Pearl Harbor. इसमें बच्चे भी आ गए थे. Small and big, 11 warships were drowned, destructed. Equal amount of installation and all these things was disturbed. It was one of the biggest attack of World War II. History में उसका नाम है, attack on Pearl Harbor.
क्योंकि जापान ने जब पर्ल हार्बर पे हमला किया तो जापान ने पूरी ताकत लगा दी थी। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैसे हिटलर के पास उसका एक ड्रीम शिप था प्रिंस बिस्मार्क, ठीक वैसी तरह जापान के पास उसका एक फ्लैगशिप था यामाटो। यामाटो की अगुवाई में यह हमला हुआ था। 800 Japanese pilots, Air Force pilots took part in this raid. In Japanese language, they were called kamikaze. Kamikaze मतलब ready to die. अगर आपने मूवी देखी होगी, एनसाइक्लोपीडिया उसका देखा होगा, तो वो पायलट्स लोगों ने अपने सर पे लाल रिबन बांधी हुई थी। जापानीज लैंग्वेज में कुछ लिखा था। वो लैंग्वेज में क्या, हमको तो जापानीज लैंग्वेज आती नहीं है, लेकिन उसका मतलब ऐसा था कि हम जिंदा वापस नहीं जाना चाहते वतन के लिए। और ऐसे ऐसे अटैक हुए, इतने बम गिराए, कई प्लेन, तो शिप वो तो सब हेवी मेटल्स की बनी होती है, उसको तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। तो कई प्लेन के पायलट्स तो ऐसे थे जो प्लेन समेत शिप के अंदरूनी हिस्से में घुस गए थे। टकराव मतलब ब्लास्ट होता, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, पूरे बिल्डिंग में कैसे एक के बाद एक प्लेन घुसा दिए थे और पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया था, ऐसा हमला किया था। इट वॉज बोल्ट आउट ऑफ ब्लू फॉर अमेरिकन, एंड एट दैट टाइम प्रेसिडेंट रूजवेल्ट was shocked and declared war on Japan. Now the world war became the real world war in this sense. ये पहली गलती थी जापान की, अमेरिका पे हमला करना। दूसरा, हिटलर ने broke friendship treaties with Russia in 1942 because before starting of World War II, रशिया न्यूट्रल था। हिटलर ने रशियंस के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी। रशिया वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर, क्योंकि अभी अभी वो उभरा था, अभी अभी आज़ादी मिली थी, उसकी इकोनॉमिक व्यवस्था जुटाने में लगा था और उसको कोई वर्ल्ड वॉर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो वो कहीं को खामखा अपना नुकसान सहे। लेकिन 1942 में जब हिटलर ने फ्रेंडशिप ट्रीटी ब्रोक कर दी और रशिया पे हमला किया, तो रशिया ने जवाब दिया। एंड आफ्टर 3 years ऑफ फाइटिंग कॉन्स्टेंट वॉर, सोल्जर्स वर ऑल्सो टायर्ड। हिटलर को ऐसा लगा था कि रशिया को हम निगल जाएंगे, खा जाएंगे, रशिया इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन हिटलर की गिनती झूठ साबित हुई। रशिया ने इतना फर्म रिस्पॉन्स दिया, जवाब दिया, कि हिटलर भी हक्का बक्का रह गया था, उसने सोचा भी नहीं था, लेकिन क्या करे। और दिसंबर का महीना था और आपको तो मालूम है रशिया में कितनी ठंड होती है। सो जर्मन सोल्जर्स वर सपोज टू फाइट 2 battles एट वन टाइम। One battle against Russian army, which was called Red Army, and second battle against nature, severe cold. Soldiers were tired fighting war for 3 years because almost 3 years have passed, and they have visited different war fronts. They have seen thousands of deaths of their colleagues. So internally, mentally, physically, they were tired. They were broken inside. Even soldiers yearned for peace, कि बहुत हुआ, बहुत लड़ लिया, कई अपने को गवाया है, लेकिन टॉप बॉसेस के पास कौन बोल सकता है? उसके तो जिम्मेवारी है, जहां ऑर्डर आए थे जाना पड़ता है। तो इसीलिए जब रशियंस ने जवाब दिया तो जर्मन हैज टू रिट्रीट। पहली बार हिटलर की आर्मी, जो जर्मन आर्मी थी, उसको रिट्रीट होना पड़ा, भागना पड़ा, और रशियंस ने
उसका बखूबी जवाब दिया, राइट। उधर से अमेरिका वॉर में जुड़ गया। So England and France, which was almost broken down by Russia, this Germany got a new momentum because America joined war from the side of allies. इंग्लैंड और फ्रांस तो खत्म हो गए थे जर्मनी के हाथ, लेकिन जब अमेरिका की एंट्री हुई तब सीक्वेंस ऑफ वॉर चेंज्ड, फॉर्च्यून ऑफ वॉर चेंज्ड। अब जर्मनी चारों तरफ से घेर चुका था। नॉर्थ ईस्ट में से रशिया था, साउथ वेस्ट में से कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस एंड अमेरिका थी, राइट। इटली का तो हाल पहले से ही बुरा था कि इटालियंस लोगों ने ही अपने डिक्टेटर को, एक समय के मसीहा मानने वाले लोगों ने ही मुसोलिनी को फांसी पे चढ़ा दिया था, मार दिया था अप्रैल में। मुसोलिनी की हालत देख के हिटलर घबराया था, ऐसा आर्काइव्स में लिखा है, आप ढूंढना। इतना वो घबरा गया था क्योंकि इटालियन लोगों ने, जो मुसोलिनी एक समय का मसीहा था, हीरो था इटली के लिए, उन्हीं लोगों ने, उसके ही पार्टी के लोगों ने, उसके ही लोगों ने, फैसिस्ट पार्टी के लोगों ने मुसोलिनी की हत्या की और इतना पीटा डेड बॉडी को, किसी ने उस पे थूका, किसी ने लाते मारी। एक जगह पे ऐसा लिखा है कि एक बंदा आके उसकी डेड बॉडी में 3 गोलियां दाग देता है। इतनी घृणा थी लोगों को, इतनी घृणा हो गई थी, हीरो को जीरो बना दिया था। और मिलान के चौक कोई एरिया में, जैसे सेंट्रल चौक बोलते हैं, उसके डेड बॉडी को उल्टा लटकाया गया ताकि पूरा मिलान देख सके, राइट। खंबे पे पूरा उसका पैरों के बल उसके डेड बॉडी को लटकाया गया था। ये सब हालत देख के हिटलर भी थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसको मालूम था कि जर्मनी की हार निश्चित है। तो उसने अपने जो वफादार सैनिक थे, उसके बॉडीगार्ड्स, ऐसे कुछ जो टॉप कमांडर्स थे, उसको बोल दिया था कि अगर मैं हारा, अगर जर्मनी हारा, क्योंकि चारों ओर से गिर गए थे और आहिस्ता आहिस्ता कंबाइंड फोर्सेस ऑफ रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड एंड फ्रांस बर्लिन की ओर आगे बढ़ रही थी। उसमें रशियंस तो सिर्फ बर्लिन से 22 किलोमीटर दूर थे जब हिटलर ने सुसाइड किया, बराबर है। तो उसने एक इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, क्या मैं जिंदा नहीं पकड़ना चाहता क्योंकि मेरे को मालूम है क्या होने वाला है। इसलिए इफ जर्मनी लूजेस द बैटल एंड आई हैव टू डाई, देन बर्न डाउन माई बॉडी, क्योंकि उसको मालूम था जो मुसोलिनी के साथ हुआ था वही हश्र जर्मन लोग मेरे साथ करेंगे। वैसे कुत्ते की मौत मैं नहीं मरना चाहता। तो इसीलिए जब उसने सुसाइड किया रात को, तब ऐसा बोला जाता है कि उसकी डेड बॉडी को चलाया गया था। लेकिन उसकी डेथ भी एक मिस्ट्री है क्योंकि उस वक्त उसने अंडरग्राउंड बहुत सारी टनलें निकाली थी। कई हिस्टोरियंस ऐसे मानते हैं कि वो जर्मनी छोड़ के भाग गया था, अपनी जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी पत्नी एलेमा, उसके साथ वो आल्प्स क्रॉस करके कहीं और निकल गया था। कई हिस्टोरियंस ऐसे मानते हैं कि रूम में जाने के बाद 3 आवाज़ें आई थी गोली की। तो ऐसा माना जाता है कि एक गोली उसके लिए थी, उसका जो प्रिय डॉगी था उसको भी मार दिया था, उसकी पत्नी को भी मार दिया था। ये हिस्ट्री है। कई सारे फैक्ट्स अलग तरीके से रजू होते हैं, कई सारे फैक्ट्स गलत होते हैं, कई सही होते हैं, लेकिन जो भी है, हिटलर का अंत आया। नाउ द एलाइड फोर्सेस कॉन्सेंट्रेटेड ऑन जापान। जापान वॉज नॉट रेडी टू सरेंडर। सुभाष चंद्र बोस का आपने एपिसोड पढ़ा है। सुभाष चंद्र बोस ईस्ट इंडिया की बॉर्डर से, बर्मा की बॉर्डर से
आसाम तक पहुंच गए थे हमारी आजाद हिंद फौज. Japan was advancing and America was in desperate situation to bring down the World War II to an end. Surrender का बोला होगा, लेकिन Japan was not ready to surrender. So the allied nation took a drastic step by dropping a bomb on Nagasaki, 6th August 1945. फिर भी जापान डट के लड़ा था. 8 अगस्त को ऐसा कहा गया है हिस्ट्री में कि पहले बार जब न्यूक्लियर अटैक हुआ, जब हिरोशिमा साफ हो गया, तब कोई वार्निंग नहीं दी गई थी. लेकिन जापान की जुनून देख के अमेरिकन बॉम्बर्स ने 8 अगस्त को आकाश में चक्रावा लेके कई सारे पैम्पलेट्स नीचे गिराए थे. पैम्पलेट्स में क्या लिखा था? अटेंशन जापानीज पीपल, इवैक्यूएट योर सिटीज. अपना सिटी खाली करो, कुछ बड़ा होने वाला है. राइट? लेकिन पीपल डिड नॉट टेक सीरियसली, इवन नॉट गवर्नमेंट. एंड तो 9th August, the second city of Japan, that was called Nagasaki, came under the attack of nuclear weapon. These two cities were burned down, totally burned down, turned into heaps of ashes. खत्म हो गया था खेल. और मजे की बात यह थी कि उसके बाद भी जापान सरेंडर नहीं होना चाहता था, लेकिन फोर्सिबली जब 2-2 सिटी गवाए, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, उससे 3 गुना लोग घायल हुए, तो इतना अच्छा सरेंडर करो. ऑफिशियली जापान ने 11 अगस्त को सरेंडर किया. बाद में जब फाइनल ट्रीटी बनी, तब यूएन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जो आज हमारा टॉपिक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन. मैंने पूरा इतिहास बता दिया पहले से, ताकि आज ये टॉपिक हम कनेक्ट कर सके. ओके बच्चों, पेज नंबर 18. यूनाइटेड नेशन. एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस, बट इट कुड नॉट. एंड व्हाई लीग ऑफ नेशन फेल्ड, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन सेकेंड चैप्टर. लीग ऑफ नेशन की फेलियर की वजह से तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, आया समझ में? वरना ये दिन देखना नहीं पड़ता था. क्यों फेल हुआ था, मैंने डिटेल में आपको समझाया है. सही बात है. एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, 24 October 1945, द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ पीस, सिक्योरिटी एंड कोएग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड. राइट? वंस अगेन an international body was established for maintaining peace. Its headquarter was in New York. आज भी है. American efforts to establish United Nations already began from the time it joined the Second World War. ऐसे बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का यह सपना था. एक बाजू वॉर अपनी सीमा पे था, क्लाइमैक्स पे था, 1942 की बात है, बराबर. पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी उस वक्त, खास करके यूरोप. और उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट विश्व शांति का सोच रहे थे, बिकॉज ही वॉज इन फेवर ऑफ स्टॉपिंग दिस वॉर एट एनी कॉस्ट. कि क्यों ना एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाए जो सब पे नजर रखे, सबकी जिम्मेवारी उठाए और सबको उसका मानना पड़े. तो ये प्रोसेस हुई थी, चालू हुई थी. राइट? American President Roosevelt made 4 important announcements regarding freedom while giving the message to American Congress, जिसको आज हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं. फिर जब यूएन बना ऑफिशियली, तो यूएन का जो चार्टर बना, उसमें ये 4 फ्रीडम्स लिए गए थे. नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, आजादी, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी. नंबर 2, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं, इंडिया में भी है. राइट? इकोनॉमिक फ्रीडम,
मतलब बंदा अपना व्यवसाय खुद कर चुन सकता है. देयर इज नो फोर्स. स्लेवरी का अंत, गुलामी का अंत. एंड राइट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर. डरने की कोई बात नहीं. लोग आराम से बेखौफ अपना काम कर सकते, जिंदा रह के अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं. राइट. लेटर अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर Churchill prepared 8-point agreement as they were on the ship of Atlantic Ocean, which was called Atlantic Agreement. This is called Atlantic Agreement. तो अमेरिका का जो आइडिया था, अमेरिका और ब्रिटेन पहले से इकट्ठे हैं. अमेरिका जो करता है वो ब्रिटेन करता है. तो अमेरिका का जो आइडिया था कि ऐसा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो उसमें ब्रिटेन का साथ था. तो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल दोनों के बीच बातचीत हुई, मीटिंग हुई एक शिप पे. और आपको मालूम है यूरोप और अमेरिका के बीच अटलांटिक ओशन है. तो ये शिप में जब मुलाकात हुई ये चर्चा के लिए, उस वक्त वो लोग अटलांटिक ओशन में थे. मतलब टहलते टहलते शिप की सैर करते करते बातें हुई थी. इसीलिए ये एग्रीमेंट जो हुआ था ब्रिटेन और इंग्लैंड, ब्रिटेन ने भी हाँ बोला कि भाई अच्छी बात है, हम भी ऐसा चाहते हैं कि वॉर मस्ट कम टू एन एंड. बराबर है. तो ये जो बातचीत हुई, अमेरिका ने ब्रिटेन का जो साथ सहकार मांगा था, उसको हम बोलते हैं अटलांटिक एग्रीमेंट. आया समझ में? The agreement includes like matter of maintaining peace, freedom and sovereignty of every nation, security, social and economic warfare and disarmament. क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में piles of weapons were gathered and what this weapon resulted into, उसका परिणाम क्या आया? तबाही. इसीलिए हम डिसआर्मामेंट रखना चाहते हैं. राइट. तो ये सारे जो भूल हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में, ये सारी भूल सुधार के मानव जात को नई दुनिया देने का प्रयास हुआ था. राइट. देन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया एंड चाइना मेट इन मॉस्को फॉर वर्ल्ड पीस. फिर तो कारवा जुड़ता गया और अच्छा, आप कोई अच्छा काम करो तो सब आपको साथ देते हैं, एक के बाद एक. अमेरिका, ब्रिटेन, फिर एक के बाद एक कंट्रीज उसके साथ आने लगे. अमेरिका का प्रस्ताव जो था वर्ल्ड पीस का, वो एक्सेप्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये इंस्टीट्यूशन अपने आप बड़ा होने लगा. राइट. विच इज कॉल्ड मॉस्को डिक्लेरेशन. इन नवंबर 43 3 superpowers held conference in Tehran. Right? फ्रांस, अमेरिका एंड ब्रिटेन वापिस तेहरान में मिले थे. राइट. The representatives of 50 nations prepared the agreement for the United Nations at Washington, September 1944. फाइनल ड्राफ्ट हुआ. अभी वर्ल्ड वॉर 2 तो शुरू ही था, लेकिन एक बाजू वॉर था, एक बाजू विश्व शांति थी. कैसा कॉन्ट्रास्ट था, देख लो आप. On October 24, 1945, the 51 member nations declared the establishment of UN. समझ में? They declared the establishment of UN. India was also the part of it since 24th October is celebrated as United Nations Day. At present, UN is having 193 members. Now, organs of UN, right? Different organs of UN. General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat. उसमें ये सारे जो ऑर्गन्स है, उसमें सबसे बढ़िया ऑर्गन द सिक्योरिटी काउंसिल है. और उसके बाद जनरल असेंबली, मतलब वर्ल्ड पार्लियामेंट जिसे हम बोलते हैं. आप 8th में भी मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज मीन बाय वर्ल्ड पार्लियामेंट, राइट? जनरल असेंबली. नाउ पहले ये बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट हॉलैंड, हैग.
Now come to page number 20, that is called जनरल असेंबली. वो क्या है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट. ओके बच्चों, द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ यूएन इज जनरल असेंबली. पेंसिल शुरू रखना, अंडरलाइन करना, राइट. इट इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द मेंबर नेशन, सारे मेंबर नेशंस उसके पास उसके मेंबर्स थे. एवरी नेशन can send maximum 5 representatives for this. 5 लोग जा सकते हैं, right? But during election, only 1 vote of each country is counted. जो मेंबर है 5 मेंबर जा सकते हैं, लेकिन जनरल असेंबली का जो चुनाव होता है मेन चीफ का, जनरल सेक्रेटरी का, उसमें एक कंट्री एक ही वोट दे सकता है, एक ही उसका वोट गिना जाता है. इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंड ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर्स. जैसे पार्लियामेंट में सब चर्चा होती है देश की, वैसे ही सारी चर्चा दुनिया की जनरल असेंबली में होती है, राइट. नंबर 2, इट एक्सेप्ट्स द बजट प्रेजेंटेड बाय जनरल सेक्रेटरी एवरी ईयर. उसका जो आय होता है, खर्चा होता है, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए कितना खर्च होता है आप सोच सकते हैं. तो वो सब बजट करना पड़ता है, राइट, एंड एलोकेट ऑल द एक्सपेंसेस. इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द नेशन, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्मामेंट और अदर इंटरनेशनल अफेयर्स, राइट. And fourth, decisions are taken by majority, 2/3 majority in general matters. तो ये बात जनरल असेंबली की हुई, बराबर है. अब यूएन की सबसे बढ़िया, सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो जनरल असेंबली से भी पावरफुल है, उसकी बात करेंगे. उसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल. जब यूएन बना तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो ढांचा था उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स को रखा गया था एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. रोटेशन 2-2 साल का था. हर एक मेंबर को, जो यूएन के 5 के अलावा जो मेंबर्स थे, उसको सिक्योरिटी काउंसिल में रोटेशन के तहत उसको चांस मिलता था. अभी एट प्रेजेंट इंडिया इज अ मेंबर ऑफ अभी इंडिया का चांस लगा है, इंडिया हैज बिकम द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो अपना काम कर सकते हैं ना ऐसे. सिक्योरिटी काउंसिल इतना पावरफुल है कि इट कैन डिक्लेयर वॉर टू अ हॉस्टाइल नेशन, इट कैन इनिशिएट पीस प्रोसेस. वैसे जनरल असेंबली बिग ब्रदर बोलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे पावरफुल ऑर्गन है. लेट अस स्टडी दैट. This is the most important organ of United Nations. There are 5 permanent members in this. That is America, Britain, France, Russia and China. These are the 5 permanent members. उसको कोई हिला नहीं सकते. लेकिन जो 10 अलग नॉन परमानेंट मेंबर्स है, जो यूएन के मेंबर्स भी है, उसको 2-2 साल के लिए चांस दिया जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? अदर 10 countries are non-permanent members. They are elected for a term of 2 years by General Assembly. Understood? This council enjoys tremendous power in order to maintain international peace and security. जो जैसे मैंने बोला कि जनरल असेंबली पूरा बॉडी है, तो सिक्योरिटी काउंसिल उसका हार्ट है यूएन का, बराबर है. और आपको मालूम है पूरा शरीर होता है, लेकिन हार्ट जब बंद हो जाता है तो शरीर की कोई अहमियत नहीं रहती.
हम उसको मुर्दा बोलते हैं। अगर हमारा पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकते, तो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन जब हार्ट बंद हो जाता है तो वो एक ही ऑर्गन है, जब वो बंद हो जाता है तो आदमी दुनिया से चला जाता है। हम करोड़ करोड़ लोग देखते हैं ना जो फिजिकली मेंटली चैलेंज है, राइट? किसी का प्रीमेच्योर दिमाग होता है, कोई गूंगे बहरे होते हैं, कोई अपाहिज होते हैं, लेकिन जिंदा रह सकते हैं। लेकिन एक बंदा मेरे को आप दुनिया में बताओ, इतना मेडिकल साइंस आगे बढ़ चुका है, फिर भी मुझे एक बंदा आप बताओ कि जिसके वो शरीर में हार्ट नहीं है, फिर भी वो बंदा जिंदा रह सकता है। जब हार्ट की बीट बंद हुई तब हमारी इस दुनिया में से चिट्ठी कट जाती है समझ में? तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इट इज हार्ट ऑफ UN, right? It solves the problem and disputes of the nations peacefully and through negotiation and act as a mediators. दो देश के बीच जो लड़ाइयाँ होती है, माथाकूटे होती है छोटी मोटी, उसके बीच वो मीडिएटर का काम करते हैं। लेकिन अभी अक्सर ऐसा होता नहीं है। जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स है वो अपने स्वार्थ के लिए, राइट, आर्म्स बेच के, अपनी इकोनॉमी बचाने के, अपने स्वार्थ के लिए सब अंदरों अंदर लड़ते हैं। UN का भी कुछ न माता, आपने अभी देखा पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच 11 दिन कितनी बड़ी तबाही हुई, राइट? इजराइल ने ऐसे बोल दिया कि हमारा सेल्फ डिफेंस का मामला है, इसने UN का ऑर्डर भी मानने से इनकार कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल की भी अपील मना कर दिया था। और सिक्योरिटी काउंसिल के जो 6 में से 4 पावरफुल मेंबर्स है, सॉरी 5 में से रशिया भी है, अमेरिका भी है, फ्रांस और इंग्लैंड भी है, वो इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करते थे। वरना तो इजराइल को अगर वो चाहते तो 1 मिनट में वो बंद करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उसका फायदा था, क्योंकि इजराइल इज सपोर्टिंग यूएस का पूरा सपोर्ट इजराइल को है। और अभी यूएस वर्ल्ड का सुपर पावर है, तो वो अपनी थोड़ी पार्शियलिटी तो दिखाएगा, है समझ में? When any one permanent member does not vote in support of some important decision, international matter, it cannot take decision on that. That is called veto. कोई इंटरनेशनल चर्चा होती है और एक मेंबर ने मना कर दिया, बोलते हैं कि हम वीटो पावर यूज करके ये रुकवाना चाहते हैं, तो वो काम आगे नहीं बढ़ता। चाइना ने, हमारे साथ चाइना के अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन चाइना ने जो हमारा जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जो पार्लियामेंट के हमले में शामिल था, मुंबई के हमले में शामिल था, हाफिज सईद, नाम तो आपने सुना होगा ना, बताते भी है टीवी पे। हाफिज सईद को इंटरनेशनल और टेररिस्ट घोषित करने के लिए अमेरिका ने प्रयास किया, ब्रिटेन ने भी सपोर्ट किया, फ्रांस ने भी सपोर्ट किया, रशिया न्यूट्रल रहा इंडिया की तरफ। लेकिन 3 से 4 बार यह प्रस्ताव पाकिस्तान की ओर से चाइना ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि चाइना की हमारे साथ बनती नहीं है। और अगर ये हाफिज सईद इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो गया तो पाकिस्तान को कई दिक्कतें आ सकती थी। इसीलिए चाइना पाकिस्तान का मित्र है, हमारा दुश्मन है। पूरी दुनिया के लिए हाफिज सईद टेररिस्ट था और रहेगा, लेकिन चाइना के लिए वो बड़ा संत महात्मा था। चाइना की नजर में दुनिया उसको टेररिस्ट हाफिज सईद बोलते हैं। कई लोग कई ठिकानों पे हमला किया है, भारत में भी कई बर्बादियां की है, कई बेगुनाह लोगों की जानें ली है, लेकिन चाइना में उसको संत हाफिज सईद बोलते हैं, क्योंकि वो कोई संत महात्मा से कम नहीं है।
चाइना की नजर में। पूरी दुनिया का टेररिस्ट जो कई बेगुनाह लोगों को मार चुका है, वो चाइना की नजर में बहुत बड़ा महात्मा है, संत है। उसको आतंकवादी थोड़े बोल सकते हैं, वो तो बहुत नेक बंदा है, वो तो संत है, उसको आतंकवादी हम नहीं बोल सकते। कई बार ये सब प्रिंटिंग है, लिखा है, पढ़ाना पड़ता है, लेकिन वास्तविकता बच्चों टोटली डिफरेंट है। अभी यूएन की भी कोई अहमियत नहीं है। कश्मीर का इश्यू 70 साल तक चला, अभी 2 साल पहले खत्म हुआ, और एक पार्ट तो अभी भी चल रहा है, पीओके जिसको बोलते हैं। अगर यूएन चाहता तो 10 मिनट में उसका फैसला दे सकता था। 70 साल के बाद भी यह फैसला नहीं है। क्यों? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है बेटा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल संत हाफिज सईद का, वैसे कई घटनाएं होती है। और जब अमेरिका और रशिया का क्लैश था, तब रशिया ने हमको सपोर्ट किया। मैक्सिमम रशिया ने वीटो पावर का यूज इंडिया के लिए किया है, ऐसा इतिहास में लिखा है। रशिया ने हमको बहुत बचाया है जब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। रशिया हैज यूज्ड द वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, बट फॉर इंडिया इधर नहीं लिखा, मैं लाइन कंप्लीट करता हूं। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वो सब छोटे मोटे ऑर्गन्स है। द काउंसिल इज कॉल्ड इकोसैक। जनरल असेंबली अपॉइंट्स 2/3 आउट ऑफ रिटायरिंग मेंबर एवरी 3 years। 3 साल उसमें मेंबरशिप मिलती है। दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बायस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रिलीजन, क्रीड एक्सेट्रा। लोगों की सुख शांति के लिए, जो दुनिया के बहुत बड़े दानवीर होते हैं, उनका जो पैसा आता है उसमें से ये लोग सोशल वर्क करते हैं, राइट। एक बाजू दुनिया तबाह होती है और एक बाजू कंस्ट्रक्शन होता है, कैसी भी हालत होती है। द काउंसिल इज सब काउंसिल्स ऑफ द वर्ल्ड। एक नंबर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पेंडेमिक में सबसे ज्यादा काम WHO करता है ना। वर्क टू इंप्रूव हेल्थ ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो लोन देते हैं गरीब देशों को, वर्क्स टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ताकि लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके, राइट। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, works to provide justice for the laborers of the world. UNICEF undertakes welfare activities of the children to improve the health in the world, providing nutritious food and education. सबसे बढ़िया काम यूनिसेफ का है, right? And UNESCO, right? Works to improve the cooperation between nations by removing illiteracy, raising the standard of living of the people of the nation through education, providing justice, education, science and cultural resources. आया समझ में? उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल है। There are 5 permanent members in this council. The representatives selected by General Assembly are included. It oversees the matter pertaining to nations which have not required independence and some provision of mandate. Also nation defeated in World War II, and give them political, social and economic development. मतलब जो World War II के वक्त तबाह हुए थे उसको हेल्प करते हैं, right? International Court of Justice. The headquarters is at Hague, Holland, Netherlands, right? There are 15 judges in it. और हमारे कई इंडियंस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम किया है, राइट। हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 years. It solves the disputes between nations, gives verdict on international disputes presented before them and give legal advice. लेकिन हमारा मामला 70 साल के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ है।
है समझ में? Then the final secretariat. The Office of Security Council, Secretary General of United Nations is called the Secretariat. Right? The General Assembly appoints the Secretary for 5 years. मेंबर नेशन में से चुनाव होते हैं, उसके 5-5 साल के लिए सेक्रेटरी बनते हैं. Secretaries, administrators, assistants, translators, and experts also appointed to help General Secretary. Right? The Secretariat is situated in New York. The United Nations has constantly been making efforts to establish world peace, world unity, and to achieve the dream of universal brotherhood. तो ये था यूएन का पूरा इतिहास. I hope you understood the whole topic, right? Clearly from top to bottom. With 6 lectures, we are ending this chapter. So I hope you have understood this chapter. In next topic, we'll start with new chapter. Okay? Now, it is your time to take your homework, children. Come on. Question number 1. What is meant by Atlantic Charter? Right? Question number 2. Write a short note on General Assembly. Excuse me. Question number 3. Write a short note on the Security Council. राइट? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय अटलांटिक चार्टर? Question number 2, write a short note on General Assembly. And question number 3, write a short note on the Security Council. So with this, we are ending this chapter. Right? I hope you have understood each and every topic clearly. और मैंने कई बार आपको बोला ये टॉपिक में कई सारी चीजें हैं कनेक्टेड टू वर्ल्ड वॉर 1. हमने जो मटेरियल बनाया है उसमें से भी मैंने गूगल में से कई फोटोग्राफ्स अलग अलग कंट्री इंसिडेंट्स के लेके मटेरियल के फ्रंट या बैक पेज पे लगाया है. बिकॉज वी आर हैविंग लिमिटेड स्पेस, वी कैन नॉट गिव एवरीथिंग. बट जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जितना मेरे को मालूम है, पता है, वो मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ. तो आप लोग ये ढूंढो अभी घर पे बैठे बैठे. यू एनहेंस योर नॉलेज. बुक में नहीं लिखा उससे ज्यादा आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको नाम बाम सब बताता हूं. ये ढूंढो, ये ढूंढो, ये ढूंढो, ताकि आपको सच्चाई मालूम पड़े कि हकीकत क्या थी. राइट? सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. मीट यू इन न्यू लेक्चर. टिल देन चिल्ड्रन, गुड बाय, टेक केयर.